ان کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں فیصلاباد کے زرخیز زرعی پر 30 برس میں 500 سے زائد کالونیاں بن گئی۔ سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبے کالونیوں میں برد ہو جانے کے باعث زرعی اجناس کی پیداوار میں بھی واسعہ کمی۔ صورتحال کے پیش نظر فیصلاباد سے گندم خریداری کوٹا کم کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ فیصلاباد کے زرخیز زرعی پر 30 برس میں 500 سے زائد کالونیاں بن گئی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں دھڑا دھڑ جو نجی کالونیز ہیں ہاؤسنگ مقصد کے لیے جو ہے وہ بن رہی ہیں اور گزشتہ 30 برس میں تقریباً 500 کالونیز جو ہیں وہ اس قرۂ ارض جو کہ ضلع فیصل آباد میں شامل ہے اس کے اوپر نمودار ہوئی ہیں، جن میں بہت ساری ایسی کالونیز ہیں جہاں پر زرخیز زرعی زمین موجود تھی، وہاں پر ان کالونیوں کو بنایا گیا، جس کے باعث فیصل آباد ضلع بھر میں جو اجناس کی پیداوار ہے زرعی اجناس کی، اس میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ ان میں سے ایک پیداوار جو ہے وہ گندم کی بھی ہے، جس کے باعث فیصل آباد میں یہاں پر پچھلے 2 سال سے جو فیصل آباد ضلعی انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک کے افسران ہیں، وہ فیصل آباد کا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، تو اس سال بھی صورتحال جو ہے وہ اس سے بالکل برعکس دکھائی نہیں دیتی۔ اس سال بھی لگ یہ رہا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے محکمہ خوراک کو فیصل آباد ضلع کے لیے ہدف ملا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جو 14,90,000 بوری خریدی جانی تھی فیصل آباد سے، اس کا ہدف پورا نہ ہو سکا اور اب یہ جو ہدف جو ہے اسے کم کر کے 11,60,000 بوری رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود محکمہ خوراک جو ہے وہ گندم کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے اپنا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور جو زرعی ماہرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلور مل ایسوسی ایشن ہے ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جس طرح تیزی سے فیصل آباد ضلع میں زرخیز زمینوں کے اوپر جو ہے وہ کالونیاں بن رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اس ضلع کو جو ہے وہ گندم ایلوکیٹ کی جائے اور اسے قلت زدہ جو ہے وہ ضلع ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ فیصل آباد میں جو آٹے کا اور گندم کا مصنوعی بحران نظر آتا ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بھوانا کے مرکز خریداری گندم جامعہ پر باردانہ کی تقسیم اور خریداری کا سلسلہ جاری۔ 1,63,000 بوری باردانہ تقسیم جبکہ 1,40,000 بوری گندم خرید لی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ بھوانا کے مرکز خریداری گندم جامعہ پر باردانہ کی تقسیم اور خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے فخر دیوان سے۔ جی فخر، بتائیے گا۔ جی بالکل، تحصیل بھوانا میں گندم کی کٹائی اور گہائی کا عمل 90% مکمل ہو گیا ہے۔ مرکزی خریداری گندم جامعہ آباد پر باردانہ کی تقسیم اور گندم کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ تحصیل انتظامیہ، محکمہ فوڈ، محکمہ زراعت حکومت کی طرف سے گندم خریداری کا دیا گیا ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے متحرک دکھائی دیتی۔ میرے ساتھ موجود ہے سینٹر کوارڈینیٹر امجد علی گورسی، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ہم پچھلے 1 مہینے سے زمینداروں سے سرکاری ریٹ 1800 پر گندم کی خریداری کر رہے ہیں۔ یہ عمل بالکل شفاف طریقے سے چل رہا ہے۔ ہمیں ٹارگٹ 1,80,000 بوری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، جس میں سے 1,40,000 بوری کا ٹارگٹ ہم پورا کر چکے ہیں۔ 1,63,000 بوری ہم ایشو کر چکے ہیں، اور لیکن ابھی تک ہمارا عمل جو ہے خریداری کا جاری ہے۔ لوگ اپنی گندم لے کے آ رہے ہیں، ہم گندم لے رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہم اپنا یہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے۔ جی بالکل، امجد علی گورسی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 1,80,000 بوری گندم جو ہے وہ خریداری کا ٹارگٹ دیا گیا، جس میں سے 1,40,000۔ بہت شکریہ فخر دیوان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں ایک بار پھر چینی کا کال پڑ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کے بلیک اور مہنگے داموں میں فروخت کا انکشاف۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 100 روپے سے زائد میں فروخت۔ ضلع انتظامیہ مارکیٹ میں چینی کے سرکاری ریٹ پر بھی عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ غریب عوام ناجائز منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، ماہ سیام کے بعد حکومت ایک بار پھر سے جو ذخیرہ اندوز ہیں اور منافع خور ہیں ان کے سامنے گھٹنے جو ہے وہ ٹیک چکی ہے، اور چینی کی اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں بلیک میں فروخت کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، اور چینی ایک دفعہ پھر سے اوپن مارکیٹ میں 100 سے تجاوز جو ہے وہ کر گئی ہے۔ 105 اور 110 روپے فی کلو میں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، اور خریدار اس حوالے سے خاصے پریشان ہے۔ محترم، چینی خریدنے آئے ہیں، کس ریٹ پہ ملی ہے؟ سر چینی 100 روپے کلو دے رہے ہیں، رمضان میں یہی 85 روپے کلو ملتی رہی ہے۔ کرونا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، مہنگائی سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت اس اپنا مسئلے کا خیال کرے، غریب آدمی پھنس گیا ہے۔ گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، روزوں اپنا رمضان میں گھی سستا ملتا رہا ہے، چینی سستی ملتی رہی ہے۔ رمضان گھے کو اب 2 دن نہیں ہوئے، چینی اور گھی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ گیا ہے۔
तो कारोबार तो है नहीं है। हुकूमत ने ये लॉकडाउन किया हुआ है, कारोबार बंद किए हुए हैं, गरीब आदमी तो फारग है और ऊपर से महंगाई का तूफान है। चिकन 500 रुपये किलो मिल रहा है, 550 रुपये किलो मिल रहा है। हुकूमत की इस तरफ तवज्जो है ही नहीं। लिहाजा मेहरबानी है, वज़ीर आला से अपील है, हम गरीबों का कुछ सोचें, महंगाई की तरफ कंट्रोल करें, अपने ऑफिसरों को इस तरफ भेजें और इनको पूछा जाए ये क्यों 100 रुपये किलो चीनी बेचते हैं। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट का भी हुक्म था और हुकूमत पंजाब की भी हिदायत थी कि चीनी जो है वो ओपन मार्केट में 85 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त हो रही। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो सरकारी नर्क था उस पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो कमेटियां बनाई गई थी वो गैर फाल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका बामर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी। चिन्नौर जिला में मजीद 3 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। चिन्नौर जिला में मजीद 3 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते खदशात है तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। और चिन्नौर ज़िले की बात की जाए तो 3 नया सेंटर भी बना दिए गए और मजबूरी तौर पर 7 सेंटर बनाया गया है। कितने अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब साहब। सर बताइएगा कि मजबूरी तौर पर कितने सेंटर है और कहाँ पर है और कितने अफराद को ये वैक्सीन लगाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारे सेंटर 7 के करीब काम कर रहे हैं, पहले हमारे जो सेंटर थे उसमें हमारा एक जनाब ऑफिसर क्लब, हमारा पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बुआना थे। अब उन्होंने अलाउ किया था कि आप अपना DHK हॉस्पिटल और दोनों तहसील अस्पताल वो इस तरह 6 वगैरह। एक हमारा 7वां सेंटर गवर्नमेंट TI कॉलेज फॉर बॉयज़ चनाब नगर भी काम कर रहा है। तो अब तक हम तकरीबन 31,300 सिटीज़न को वैक्सीन कर चुके हैं। कल शाम तक का ये डाटा है। तो होपफुली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और साथ साथ हमें ये भी अलाउ किया कि जो आपके रूरल हेल्थ सेंटर हैं वो तमाम और जो आपके वेल रनिंग इस्टेब्लिश बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वहाँ भी आप ये बना दें। तो ये हमने एक डिमांड भेजी है, जब हमें अलाउ करेंगे तो वहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के अमल को बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन सेंटर के दौरान ड्यूटी बंद और अमला गैर हाजिर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा में अमले के गैर हाजिर होने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा से वजाहत तलब कर ली। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद की जानिब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरे को जो है वो नोटिस जारी किया गया और वजाहत तलब की गई है कि दौरान ड्यूटी कोरोना वैक्सीन सेंटर जो था वो बंद पाया गया और अमला जो था वो गैर हाजिर था। हमारे साथ COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब मौजूद हैं। जी सर, बताएं वैक्सीन सेंटर के बारे में। देखें जी, गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ईद के बाद जितने भी CVCs हैं, जो सिटीज़न वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वो 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक फंक्शनल हो जाएंगे और जितने भी लोग शेड्यूल्ड आएंगे उनको वैक्सीनेशन करेंगे। लेकिन वो हमने अपनी सारी टीमों को सेंसिटाइज भी कर दिया गया था। उसके बावजूद जो MS चकझुमरा है वो ही रिमेंड एब्सेंट और डायरेक्टर साहब ने मुझे उसकी एब्सेंट रिपोर्ट की है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को हम उसके एक्शन के लिए रिपोर्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरिक। SOPs पर अमल दरामद न होने पर मुतअद्दिद गाड़ियां बंद, जबकि 20,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने पर मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा जुर्माने भी किए गए हैं। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने पर मुतअद्दिद गाड़ियां बंद, 20,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फेस्को की सुस्ती मुआशी तरक्की में आड़े आने लगी। फेस्को में 400 kVA ट्रांसफार्मर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को की सार्फिन को प्राइवेट तौर पर ट्रांसफार्मर्स खरीदने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फेस्को की सुस्ती मुआशी तरक्की में आड़े आने लगी। फेस्को में 400 kVA ट्रांसफार्मर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैसे सनती शहर में कारोबारी तबका को फराहम किया जाएगा साजगार माहौल, और कैसे नई बनने वाली जो सनतें हैं उनको फौरी कनेक्शन की सहूलत फराहम की जा सकेगी। इसी वाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 400 kVA ट्रांसफार्मर्स का जो बहरान है अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। फेस्को रीजनल स्टोर में 400 kVA का एक भी ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। हालात के पेश नज़र फेस्को चीफ की जानिब से 400 kVA ट्रांसफार्मर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन को प्राइवेट तौर पर ट्रांसफार्मर खरीदने की जो हदायत हैं अब वो जारी कर दी गई हैं। फेस्को रीजनल स्टोर में एक भी जो है वो 400 kVA का ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद चूँकि एक सनती शहर है, फेस्को की ये जो सुस्ती है वो माशी तरक्की में आड़े आने लगी है, क्योंकि फैसलाबाद में माहानावार जो है वो इंडस्ट्री तरक्की करती है और उसके साथ साथ जो नई सनतें फैसलाबाद में लग रही हैं वो उनका चलना जो है वो बिजली के बगैर मुमकिन नहीं होगा। इस पर फेस्को जो है वो तमाम तर मनसूबाबंदी तैयार करने में सुस्त रवि का शिकार रहा है, और उसके साथ साथ नई हाउसिंग स्कीमें को भी 400 kVA का ट्रांसफार्मर्स फराहम किया जाता है, तो नई हाउसिंग स्कीमों को भी अरसा दराज से मुश्किलात का सामना था। सिटी 41 की जानिब से पहले भी इस बात की निशानदही की जा चुकी है कि फेस्को रीजनल स्टोर में 400 kVA का एक भी ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, और अब जाके है जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हालात इस कदर जो है वो मुश्किल हो चुके हैं कि अब फेस्को की जानिब से सार्फिन को ये कहा जा रहा है कि वो 400 kVA का जो ट्रांसफार्मर है अब वो प्राइवेट तौर पर खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। ट्रांसपोर्टर्स का एक्सपोर्टर्स को बड़ा धचका। 1 मई से 16 मई तक दोनों हाथों लुटते रहे। कराची के लिए फीकस कंटेनर कराया 75,000 इजाफी वसूल। 20 से 25,000 की बजाय 1 लाख रुपए लिए गए। एक्सपोर्टर्स की शिकायत सामने आ गई। मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को लूटने का अमल जारी है। 1 मई से 16 मई यानी कि ईद तक 1 लाख तक किराया वसूल किया जाता रहा। मारूफ एक्सपोर्टर और साबिक चेयरमैन जो है बूमा और एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हसन मलिक साहब, इनसे बात करते हैं। ऐसा ये कंटेनर्स वाला क्या मसला है? इजाफी किराया और एक्सपोर्टर्स की तरफ से उन्हें माफिया करा दिया जाता रहा। माफियाज का एक बड़ी तादाद है, आप लोगों को चेक कर लिया जाता है, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर हाथ साफ करें उनका कौन सा जवाब करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही रिपोर्ट पहुंची आपको। आप जानते हैं कि फैसलाबाद अप कंट्री है, और अप कंट्री से जो कंटेनर ट्रकिंग के जरिए कराची जाते हैं सी पोर्ट पे, और कंटेनर का किराया 20-40 फुटर 20,000 से 30,000 आम तौर पे चलता है। लेकिन जब ईद आती है, कोई स्पेशल इवेंट आता है, ट्रांसपोर्टर माफिया सरगर्म हो जाता है, और इस दफ़ा 1 लाख रुपए तक ये कराया गया है। और एक्सपोर्टर्स की चूंकि मजबूरी थी, उन्होंने वेसल कैच करना था, उन्होंने ये पे किया है। तो मैं ये कहता हूं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहाँ हैं कि जो इस ट्रांसपोर्टर्स को इनको चेक करें, और जो ये करोड़ों रुपया हमारी एसोसिएशन से 100 से ज़्यादा मेंबर्स ने ये ज़्यादा पे करके कंटेनर्स लगवाए हैं, तो इसको पे बैक का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से मैं ये अपील करता हूँ। अपील किया जी कि 100 से ज़ायद सिर्फ एक बूमा से अगर देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स ने अपने कंटेनर जो हैं वो इतने महंगे दामों भेजे जो करोड़ों का माल बनता है, इसके ऊपर इनका करोड़ों का माल बनता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में मजीद 2 कंपनियों की मुबैना टैक्स चोरी पकड़ी गई। एतमाद डाइंग और अकबर टेक्सटाइल ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। कंपनियों ने आमदन और मुनाफे की रकम रिकॉर्ड में कमी जाहिर की। दोनों कंपनियों ने मामला सामने आने कमिश्नर अपील से रजू कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 2 टैक्स गुजार कंपनियों एतमाद वीविंग और अकबर टेक्सटाइल की जानिब से रिकॉर्ड में हेर फेर करके टैक्स चोरी की गई है। दोनों टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से अपने रिकॉर्ड में जो मुनाफा और आमदन की रकम है वो कम जाहिर की गई है, जिससे कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ताहम FBR की ऑडिट कमेटी की जानिब से इन केसेस का ऑडिट किया गया, तो उसमें ये टैक्स चोरी पकड़ी गई जो कि माली साल 2017 में की गई, जिस पर रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को हिदायत जारी की गई है
کہ قومی خزانے کو پہنچایا جانے والا 3 ملین روپے کا یہ جو نقصان ہے اس کی ریکوری کے لیے اقدامات کیے جائیں، جبکہ دوسری جانب دونوں ٹیکس گزار کمپنیوں کی جانب سے معاملہ سامنے آنے پر کمشنر اپیل سے رجوع کر لیا گیا ہے اور وہاں پر اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ تاہم فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ عمیر عصمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں جھنگ ریلوے اسٹیشن روڈ خستہ حال، گندا پانی سڑکوں پر بہہ نکلا، مسافروں کا وقت پر پہنچنا مشکل، فیسکو ملازمین بھی پریشان۔ اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں جہاں دیگر مقامات پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہیں سیول لائن میں ریلوے روڈ کو جانے والی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی سڑک پر فیسکو کے جو ہیڈ کوارٹر دفتر موجود ہے، یہاں پر آنے والے جو ملازمین ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں اور ٹوٹی سڑک پر پانی جمع رہنے سے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے مسافر جو ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے مقامی افراد موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا سڑک ٹوٹی ہوئی کب سے ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، اس سڑک کا یہی حال ہے۔ ادھر فیسکو دفاتر بھی ہیں جہاں کسٹمر کو آنے میں دشواری ہوتی ہے اور ریلوے اسٹیشن بھی ہے جو کہ آنے جانے والے مسافروں کے لیے تنگی کا باعث ہے۔ بارش آ جائے پانی نہیں سوکھتا، سیوریج کا پانی 10 سال سے بالکل ایسے ہے کہ جیسے کبھی ڈلا ہی نہیں ہے۔ سیوریج مکمل بند ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے اور سڑک جو ہے وہ مکمل ہی تباہ حال ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس سڑک کو مکمل کیا جائے اور آنے جانے والوں کی سہولت پیدا کی جائے۔ نمازیوں کے لیے اور نماز جنازہ وغیرہ لے جانے کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ جی بالکل، مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 10 سال سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سیوریج کا پانی یہاں جمع سڑک کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شیخوپورہ روڈ پھڈا سٹاپ ٹریفک مسائل کا شکار، ون وے کی خلاف ورزی حادثات کو موجب بنے لگی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے وکاس بیگ سے۔ جی وکاس بتائیے گا۔ جی بالکل، شیخوپورہ روڈ پہ مین بھٹا اسٹاپ کے مقام پہ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے یو ٹرن کو عارضی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ یہ وہی یو ٹرن تھا جس کو بھائی والا سے ہوتے ہوئے کینال روڈ تک لنک روڈ جو ہے وہ کہا جاتا تھا، لیکن ٹریفک کی بندش جو ہے وہ اس یو ٹرن پر عارضی رکاوٹیں کرنے کے بعد جو ہے وہ بحال ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ شہری جو ہیں وہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی روڈ پہ دکھائی دیتے ہیں اور عارضی رکاوٹوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے شہری جو ہیں وہ حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ اس وقت مین شیخوپورہ روڈ کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد سے گزرنے والی ٹریفک جو ہے وہ پھڑیاوالا، شاہ کوٹ، ننکانہ، لاہور اور گجرانوالہ کی طرف جانے والی ٹریفک اسی روڈ سے گزرتی ہے، جس کو شدید قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ سرے راہ مین بازار کے درمیان سے، مین روڈ کے درمیان سے جو ہے اس طرح سے ٹریفک کا گزرنا جو ہے وہ حادثات کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کی تو جو مقامی آبادی ہے وہ اس کٹ کے بعد جو ہے دوسرا کٹ بہت زیادہ فاصلے پہ ہونے کی وجہ سے ون وے کی خلاف ورزی جو ہے وہ اپنا معمول بنا چکی ہے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر ہونے والے حادثات کے بارے میں اگر بات کی جائے خلاف ورزی معمول بن چکی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وکاس بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کمالیہ سبزی منڈی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سیوریج کے ناقص انتظامات آڑھتی اور کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے۔ جی رضوان اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل کمالیہ کی اہم شاہراہ سبزی منڈی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سیوریج کے بھی ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے گندگی اور غلاظت سے یہاں پر مکین ہے ان کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آڑھتی حضرات اور کسان خاصے پریشان ہیں کیونکہ بیشتر گاڑیاں یہاں پر پنچر ہو جاتی ہیں، جس کے بعد ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیونکہ وہ لوڈ ہوتی ہیں جو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بات کریں گے موجود بھائی جان، بتائیے گا روڈ کے حوالے سے کیا؟ جی یہ روڈ سبزی منڈی کے بعد جاتا ہے تو بہت عرصے سے شکار ہے، ٹھیک ہے، تو سبزی آتی جاتی ہے، بھنڈی وغیرہ، فروٹ وغیرہ، تو ساتھ مسجد کو مشکلات ہوتی ہے، نمازی کو تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹریفک اتنی جام ہوتی ہے، کوئی آتے جاتے کو مسئلہ بنتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ٹریفک جام رہنا یہاں پر معمول بن چکا ہے۔ بات بھی کریں گے بھائی جان، آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی جان، یہ نا سبزی منڈی کا مین راستہ ہے، سول ہاسپٹل کو یہ راستہ جاتا ہے، یہ مسجد کو جو بھی نمازی ہے سب کو پریشانی بنتے ہیں، جو راہگیر ہے جو ادھر بھنڈی یا سبزی وغیرہ لے کے آتے ہیں سب گاڑی والوں کو پریشانی ہوتی ہے اور کوئی پیدل شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ میڈیکل کالجز کی بھاری بھرکم فیسیں، فیصل آباد میں طلبہ اور والدین کا اضافی فیسوں کی ڈیمانڈ کے خلاف کینال روڈ پر احتجاج،
4th ईयर के तलबा का ऑनलाइन क्लासेस जल्द शुरू करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से इजाफी फीसें वसूल किए जाने के खिलाफ केनाल रोड पर एहतजाज किया जा रहा है तलबा और वालिदैन की तरफ से, जिसमें यह मुतालबा किया जा रहा है कि 4th ईयर के जो तलबा हैं उनसे इजाफी फीसें वसूल की जा रही हैं, जिसके बायस उनकी ताहाल ऑनलाइन क्लासेज जो है उनका आगाज़ नहीं हो सका। इस हवाले से तलबा, तालिबात और वालिदैन और इसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर जमातों के लोग भी यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा, क्या कहते हैं, आज स्टूडेंट्स क्यों सरापा एहतजाज बने हुए हैं? हम लोग अपनी इस साल की जो फीस है वो दे चुके हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा सिलेबस कम हो रहा है, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से एंड पे के हमारे दाखिले रोकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस साल की फीस दे चुके हैं, जो हमारे फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनकी सप्लीज हैं, उनका एडमिशन नहीं भेज रहे, उन बच्चों का साल ज़ाया होगा। हमारा 5 साल का कोर्स है, उनका वो उसमें कवर ही नहीं होगा। हम लोग जब फीसेस दे चुके हैं अजीज़ फातिमा मेडिकल डेंटल कॉलेज में, तो हमारी क्लासेस भी अभी स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, तलबा का कहना है कि वो अपनी फीसें दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी क्लासेस का आगाज़ नहीं हो रहा। वालिदैन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जमात इस्लामी के ज़िले अमीर यहाँ पर मौजूद है, महबूब जमान भट्ट, उससे बात करते हैं। बताइएगा कि तलबा और वालिदैन यहाँ सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई अभी तक बात सुनने नहीं आया। क्या कहते हैं, मुतालबा क्या है इस वक्त? ये बड़े अफसोस की बात है जी कि पूरे पंजाब के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी रूटीन की फ़ीसें लेकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये वाहिद अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने फीसेस भी ले ली हैं और अब एक्स्ट्रा फीसेस लेने की शर्त के साथ वो कहते हैं जी कि अगर आप ये फ़ीस देंगे तो हम आपकी ऑनलाइन क्लास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कॉलेज है और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह बच्चों को ब्लैकमेल करना और बच्चों को तालीम के हक से महरूम करना। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि इनकी तालीम फ़ौरन शुरू की जाए और इसके साथ अगर कोई उनका मसला है तो वो डायलाग करें, लेकिन तालीम रोकने का कतन जवाब पैदा नहीं होता और हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये आखिरकार मसला जो है वो असम्बलियों में और हर जगह जाएगा और फिर ये हुकूमत के लिए भी सरदर्दी का और इंतजामिया के लिए भी सरदर्दी का बायस होगा। बिल्कुल, तमाम जो तलबा हैं उनकी तरफ से शेड्यूल की फीसें जो हैं वो अदा की तलबा और वालिदैन का इजाफी फीसों की डिमांड के खिलाफ केनाल रोड पर एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में नेशनल लेबर फेडरेशन के जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक्सिंग में आज जो है नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के हवाले से रैली का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मरकजी सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शम्सुर रहमान ने खास तौर पर शिरकत की। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के दिन के हवाले से जो है फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीनियों पर गुज़श्ता 75 साल से अरसा याद तंग किया हुआ है और इसराइल एक छोटा सा शैतान है जिसको अमेरिका और मगरब की हिमायत हासिल है, और बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक पर जो हुक्मरान इस वक्त मुसल्लत हैं वो भी ऐसे हैं कि वो भी कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे। अभी यूएनओ की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, ओआईसी का इजलास हुआ है, एक करारदाद से वो आगे नहीं बढ़े, जबकि वहाँ अमवात हो रही हैं। और आपको हैरत होगी कि अल जज़ीरा के दफ्तर को उन्होंने अल्टीमेटम दिया और गिरा दिया, यानी जो आवाज़, लोगों की आवाज़ को, लोगों के उस कत्लेआम को पहुंचाते थे लोगों तक, उनको कत्ल कर दिया। दुनिया खामोश है। तो हम इस पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ नेशनल लेबर फेडरेशन टोबा टेक्सिंग ने ये इंतज़ाम किया है। तो हमारा पैगाम ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो जुर्रतमंदाना इक़दाम लें कि आज अगर किबला अव्वल को नहीं बचाया आपने तो फिर आप बैतुल्लाह को और मस्जिद नबी को नहीं बचा सकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और कुछ और भी शख्सियत में सर मौजूद हैं, उनसे बात। सर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, आप जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? हम सबसे पहले तो अपनी आवाम से ये मुतालबा करेंगे कि जो भी गैर ममालिक की अशिया इधर फ़रोख्त होती हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, और दूसरे नंबर पर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ फिल फौर जहाद का ऐलान करें। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और जिहाद का ऐलान बहुत करें। शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद जिला कौंसल चौक में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज और रैली निकाली गई। मजीद बात करेंगे शाहिद अघुमन से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा।
जी, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की जानब से इसराइलियों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में ज़िला कौंसल चौक में रैली निकाली गई और इसराइलियों के खिलाफ जो है वो नारे भी लगाए गए कि जिस पर जो इसराइल की जानब से फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत किया जाए। हमारे साथ मौजूद है, हम से जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, फ़लस्तीन पर जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है इसराइल की जानब से, उनके खिलाफ आज रैली निकाली गई, क्या मैसेज देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पिछले एक हफ्ते से जो हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जुल्म ढाया जा रहा है, हम बहैसियत मुसलमान एक मुट्ठी की मानंद हैं। हम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान जो हैं यकजा हैं और हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो वर्ल्ड फोरम है उस पे इसको इस तरीके इस अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्ल्ड फोरम पे इसको इस तरीके से हटाया जाए कि फ़लस्तीन में जो फौरी तौर पर जो जुल्म है उसको बंद किया जाए और यूएनओ की जो जनरल असम्बली है उसके अंदर ये इस मामले को फौरी तौर पर ले जाया जाए और ताकि ये मुसलमानों का आज अगर फ़लस्तीन में ये जुल्म हो रहा है तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में हो रहा है और पूरे जो 54 मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है। फ़लस्तीन पर जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।